We discussed about growth of industrial capitalism in Europe. ଗଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ୟୁରୋପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିକାଶ ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାମନ୍ତବାଦରୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲା ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ. We also discussed different factors that were responsible for the transition from feudalism to capitalism. ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ played an important role in the growth of industries in Europe. ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଲା. Industrialization in Europe from 1750 to 1850, ଗୋଟେ phase. Then the next phase we shall discuss from 1850 to 1914. 1750ରୁ 1850 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ଦେଖିବା ଯେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା, ଯେଭଳିକି ଆମେ ଶିଳ୍ପାୟନ କହିଲେ ସେଟିଂ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ବିଗ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମେସିନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବା ବୃହତ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ, ବଡ଼ ମେସିନେରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି. There is a large number of workers, they work under a common roof and they perform different tasks. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ division of labor means division of work, that promotes to specialization. ତେଣୁ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ବା ୟୁରୋପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ତାହା ବ୍ୟାପିଲା. ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ they use small machines, they took the help of small inventions and slowly that they upgraded their machines, they upgraded their technology. ମେସିନର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେଲା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମକୁ ବଢ଼ାଗଲା, ପାୱାର ବଢ଼ାଗଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏଠି became simplify କରାଗଲା, ସରଳ କରାଗଲା, ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରଳ କରାଗଲା ଏଇସବୁ ମେସିନାରୀ ଗୁଡ଼ାକ. ଏବଂ 1850ରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେଥିରେ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ରଷିଆରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ହେଭି ମେସିନାରୀ, ଲାର୍ଜ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବହୁତ ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଏସବୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ସେତେବେଳେ ଆଚିଭ୍ ହୋଇଥିଲା. ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱି shall discuss what do you mean by industrialization. ଏ ଶିଳ୍ପାୟନ କ'ଣ? ଶିଳ୍ପାୟନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? So industrialization is a process of transforming the economy of a nation or a region from a focus on agriculture to a reliance on manufacturing. ଶିଳ୍ପାୟନ କହିଲେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ନକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ତାର ଧ୍ୟାନଟା ହଟାଉଛି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବା କୃଷିରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଉଛି. From agriculture to industry, transform from agriculture to industry, କୃଷିରୁ ଶିଳ୍ପ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଶିଳ୍ପାୟନ. ଦିସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଫେଜ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍. ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମିଡିଆଭାର ପିରିୟଡ଼ ବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଥିଲା. So that was based on primitive or basically small tools they used. But now
वी आर मुविंग टुवर्ड्स मेकानाइजेशन यांत्रिक पद्धति अधिकार अधिका उत्पादन करबा बा उत्पादन को यांत्रिक पद्धति परिवर्तन करबा एवं बहुल भाव में परिवर्तन करिया मास प्रोडक्शन विथ द हेल्प ऑफ machine with the help of machines or to mechanize the method of production the means of production रे परिवर्तन आसुची प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे जे भली हमें प्रोडक्शन करूथिले व्हाट आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन सेथिरे परिवर्तन आसुची इन ए इंडस्ट्रियलाइज पीरियड तार सब कारण गुड़िक आगुरी मध्य आलोचना होती से आलोचना बा से कारण गुड़िक होती जे सबुठार मुख्य जिनस होची जे साइंटिफिक इन्वेंशन वैज्ञानिक उद्भावन एबे आम देखा जे इंडस्ट्रियलाइजेशन बा शिल्पायनटा प्रथम केउठार आरंभ होता और यह परवर्ती समय किभली भाव में समग्र यूरोप एवं पृथ्वी को व्यापी थे In the 17th and 18th century, industrialization started with Europe and North America, and later on it spread to different parts of the world. सप्तदश अष्टादश शताब्दी रे यह यूरोप रे आरंभ हुई यूरोप नॉर्थ अमेरिका रे आरंभ होइतला तापरे यह समग्र विश्व को व्यापी जाइतला इंडस्ट्रियलाइजेशन बा शिल्पायन बा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम कहूचे ताहा प्रथमे इंग्लैंड रे आरंभ होइतला द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड फर्स्ट originated in इंग्लैंड तो इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव हबार अनेक गुड़िया कारण अच्छे बा इंग्लैंड रो शिल्पायन केतोडे वैशिष्ट्य अच्छी द मेन फैक्टर्स व्हिच प्रोपेल्ड फर्स्ट मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन वेयर एज फ्लोस प्रथम जिनस होची एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर बा एग्रेरियन स्ट्रक्चर कृषि रो गठन एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हेल्प इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कृषि क्षेत्र में विप्लव कृषि क्षेत्र में जो आमर फार्म क्षेत्र जो भाया वैप्लविक परिवर्तन आसला मेकानाइजेशन है 2-3 सिस्टम आसला क्रॉप रोटेशन है then manures fertilizers so a lot of changes that took place in the field of agriculture जहाँ फल की प्रोडक्शन वृद्धि पाइला and that led to marketing of surplus goods or surplus food grains जब इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव हवा फल उत्पादन वृद्धि पाइला कृषि उत्पादन वृद्धि पाइला और से जो कृषि उत्पादन वृद्धि है ताकू से माने से महादेश रे अन्य देश मानक पुंजी बिक्री कले से पुंजी आसिले और से पुंजी से परवर्ती समय जो हम कहजे कि द ट्रांसफॉर्म दैट कैपिटल इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म तेणु ये जो कृषि विप्लव आसला बा जो कृषि स्ट्रक्चर देखिया फास्ट हम देखिया एग्रेरियन स्ट्रक्चर टा कौन ना कृषि रो द क्रुशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ modern industrialization was the shift of human to material resources that is from agriculture to industry आधुनिक शिल्पायन रे गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है कृषि रु शिल्प को मानव एवं वस्तु समूहर परिवर्तन कृषि परिवर्तन गुड़िक द्रुत गति गतिशील है जहाँ मुख्यतः ये जो प्रोडक्शन है बा कृषि परिवर्तन गुड़िक द्रुत गति गतिशील था जहाँ मुख्यतः अण कृषि क्षेत्र में नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नियोजित है बा कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आसला अधिक प्रोडक्शन है जहाँकि अण कृषि क्षेत्र में नियोजित थिबा कर्मचारी को बा व्यक्ति को बा जनसंख्या को खाइबा को देवाई यथेष्ट है सो एक निर्दिष्ट समय भितर इंग्लैंड कृषि यही परिवर्तन को कृषि विप्लव कहला केते गुड़िए गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य रही इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन है से केते गुड़िए फैक्टर्स केते फैक्टर्स अच्छी
जे प्रथम सिस्टम है मध्ययुगीय माने medieval open field system that was changed and that now changed to enclosed unity मध्ययुग रे जो ओपन फील्ड सिस्टम थिला ताहा जगह रे आसिला क्लोज्ड यूनिटी आबद्ध बा बृहत आबद्ध यूनिटी एनक्लोजर मूवमेंट कौन हला ना big landlords they enclose the community land. The big landlords they purchase the land of small farmers. As a result of which they became landless laborers. Community land को आबद्ध कले छोट छोट चाषी जो माने से जमी को किनले लैंड बिकेम सेलेबल कहीं ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पूर्व एग्रीकल्चर वाज subsistence in nature basically agriculture is based the main objective of agriculture was consumption खाउटी बने किंतु इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रे एथिरे परिवर्तन हो एग्रीकल्चर बिकम कमर्शियलाइजेशन तेणु ये यूनिट बड़ बड़ फार्म आसला जहाँफल कि प्रोडक्शन बढ़ला द्वितीय जिनस हूँ जे लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बा पशुपालन वृद्धि एवं प्रोत्साहन पाई साधारण जमीर मिश्रण करागला एनिमल हजबेंड्री से पदक्षेप निगला एवं तृतीय जिनस अच्छी जमीर कृषक मान को बाहर करी से कृषि श्रमिक परिणत करवा द peasants the farmers they lost their land and now they became landless laborers ये जो लैंडलेस लेबरर्स रहिले एमाने परवर्ती समय रे शहर को जब काम न पाइले जमीन है तो शहर को मूव कर टाउन एंड सिटीज एवं सेठारे फैक्ट्री कल कारखाना काम कले एवं इंडस्ट्री को मध्य सस्ता लेबर मिल गले चीप लेबर मिलले जो हाउ जे बड़ डेवलपमेंट है ये क्षेत्र इंग्लैंड कृषि क्षेत्र जे कृषि उत्पादन बढ़ला द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर increased agricultural production बढ़िया कारण होचे जे adoption of there is a development in science and technology use of science and technology वैश्विक ज्ञान को सेठारे कार्यकारी करबा जेमि कले 3 पिल सिस्टम आछे पर सेवन कदे टर्निप चाष होचे देन क्रॉप रोटेशन द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी मेंटेन तेणु ये सब जो परिवर्तन आसला कृषि क्षेत्र में ताहा प्रोडक्शन को कृषि प्रोडक्शन बहुत अधिक है और कृषि प्रोडक्शन अधिक हवा फल ये समय जो वृद्धित जनसंख्या को ताहा जो जनसंख्या वृद्धि पाइला कृषि वृद्धि फल ट्रेड एंड कमर्स है ट्रेड एंड कमर्स फल टाउन एंड सिटीज आसला टाउन एंड सिटीज मीन्स अर्बानाइजेशन जो अर्बानाइजेशन जो माने नॉन एग्रीकल्चरिस्ट थिले सेमान को मध्य खाद्य जोगाइला तेणु ब्रिटिश अर्थनीति रे कृषि शिल्प को धीरे धीरे परिवर्तन आय ढांचा रे उल्लेखनीय परिवर्तन आय ढांचा में that their income increase the pattern of income increase economic growth achieved एवं नूतन सामाजिक गोष्ठी इंडस्ट्रियलाइजेशन आसला फल द न्यू सोशल ग्रुप्स दैट दे एमर्ज्ड ओ अभिवृद्धि गुड़िकर सामग्रिक गठन परिवर्तन अंश शिल्पायन कृषि शिल्प क्षेत्र को जो परिवर्तन ताहा शीघ्र ह्रास होता सो ये ब्रिटिश अर्थनीति रे एबे जो परिवर्तन देखागला एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर परिवर्तन आसला एग्रीकल्चर आल्सो सपोर्टेड द इंडस्ट्री दैट आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आ जो इंडस्ट्री प्रथम रिवोल्यूशन आसला जो शिल्प क्षेत्र रे रिवोल्यूशन आसला विप्लव आसला सेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वैप्लविक परिवर्तन देखा जाइतिला तेणु ये इंडस्ट्रियलाइजेशन केतगुड़ी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी वैशिष्ट अच्छी शिल्पर उन्नति हेले शिल्पर वृद्धि हेले साधारणतः जनसाधारण मानकर
ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଏଠି ଏନହାନ୍ସ ଗ୍ରୋଥ, ଏଠି the income also increases, and besides that also ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏବଂ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଲେବର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ କୃଷି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇନୋଭେସନ and all these things, ଖାଦ୍ୟର ବା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, so that led to a better living standard, ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ମାନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଲା, ବଞ୍ଚିବାର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲା। ଯେଭଳିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମାଲଥସଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଥିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥର ମଧ୍ୟ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। Early industrialization occurred in Europe, 1750 ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, 1850 ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସହାୟ ହେଲା ଯେ ଶିଳ୍ପ ଆୟନ ହେବାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମର ପପୁଲେସନର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବଢ଼ୁଛି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢ଼ିଲା ଫାର୍ମ ମେକାନାଇଜେସନ ଫଳରେ, ଏବଂ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଜନସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହା ସପୋର୍ଟ କଲା। So demographic change describes the changes in population size and structure caused by changes in birth rates and death rates and by migration। এই তিনটা କାରଣରୁ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଆମର ଦେଖିବା ପ୍ରିମିଟିଭ ଷ୍ଟେଜରେ ହାଇ ବାର୍ଥ ରେଟ୍, ହାଇ ଡେଥ୍ ରେଟ୍, ଅଧିକା ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲାଇଜ୍ ବାର୍ଥ ନଥିଲା, ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସବ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଛି। ଆଗରୁ ଏଭଳିଆ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ବହୁତ ପିଲା ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ। ତ ହାଇ ବାର୍ଥ ରେଟ୍, ହାଇ ଡେଥ୍ ରେଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିମିଟିଭ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ ବା ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆସୁଛି ବା ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଢ଼ୁଛି, ମଣିଷଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଧିକା ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଆସୁଛି ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ହାଇ ବାର୍ଥ ରେଟ୍, ଲୋ ଡେଥ୍ ରେଟ୍। ଅଧିକା ପିଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ମିଳିଲା ସେସବୁ କମ୍ ପିଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍, ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛେ, ଠିକ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ as a result of industrialization and post industrialization period also we see marriageable age increase ହେଇଯାଉଛି। ଆଗରୁ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ, ଫର୍ଟିଲିଟି ପିରିୟଡ଼ ଅଧିକା ରହୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ, ସେଟେଲ୍ ହେଲା ପରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସମୟ ଫର୍ଟିଲିଟି ରହୁଛି, ପିଲା ବି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ମାନେ ଲୋ ବାର୍ଥ ରେଟ୍, ଲୋ ଡେଥ୍ ରେଟ୍, ଲୋ ଡେଥ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବାର୍ଥ, ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋ ବାର୍ଥ ରେଟ୍, ହାଇ ବାର୍ଥ ରେଟ୍ ଆଉ ଡେଥ୍ ରେଟ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ରହିଲା, ବା ମୃତ୍ୟୁହାର ବା ଜନ୍ମହାର, ଜନ୍ମହାର ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମାଇଗ୍ରେସନ, ଏଇ ଘଟିଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଆକାର ଏବଂ ଗଠନର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଏଇ ତିନୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଜନ୍ମହାର, ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମାଇଗ୍ରେସନ, এইটা ডিসাইড করে the size of a population and the structural change। industrialization ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ the structure of economy changed, so it mark the structural change in economy। ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର କେତେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟର କେତେ କାମ କଲେ, ଏବଂ ପରେ ଟେରସିଆରୀ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ କେତେ କାମ କଲେ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। In pre-industrial society বা pre-industrial period ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ the contribution of agriculture to GDP and also
जी कमिया लगुच प्रोडक्शन बढ़ला फल यार कंट्रीब्यूशन बढ़िया लगुच आम देखते सर्विस सेक्टर अधिका कंट्रीब्यूशन रोचे सो ये जो सब परिवर्तन है पॉपुलेशन दैट ग्रोथटा गोटे बड़ फैक्टर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल लार्ज मार्केट मोर कंज्यूमर कंज्यूमर जनसंख्या वृद्धि है अधिका जिन परचेज करेंगे एवं कंज्यूमर हेले ही कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री आसो एस्टाब्लीश हम यदि कंज्यूमर न रहे तो इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस कर तो जदि भी अधिका प्रोडक्शन है इंडस्ट्री मेकानाइज फॉर्म रे तो सेल हेनी मांदा अवस्था आसो तेणु पॉपुलेशन ग्रोथटा सपोर्ट कला लेबर फोर्स मिलला देन बिग मार्केट आल्सो क्रिएटेड द एग्जाम एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन जो वर्धित जनसंख्या सप्लाइड चीप एंड इंक्रीज्ड लेबर फोर्स श्रमशक्ति वृद्धि घटला along with an enlarged market to growing industry विस्तारित जनसंख्या एक सस्ता एवं वर्धित श्रमशक्ति सहित बढ़ुवा शिल्प को बाजार जोगाई देला So process of industrialization supported growing population by increasing income levels. यहाँ पर आमे अन्य जो दिगटी देखिबा जो कारण आमे आलोचना करिया से गोटे होची टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वैषयिक ज्ञान उद्भावन बा वैषयिक उद्भावन ए टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन बा इनोवेशन किभଳି भाबरे शिल्पायन को त्वरान्वित कला हाउ द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेलरेटेड ड्यू टू साइंटिफिक इनोवेशन किभଳି वृद्धि घटाइला से गुडी होची जे क्रमिक उद्भावन गुड़िक आधुनिक शिल्पायन प्रथम तरंग को चिन्हित कला दैट मार्क द फर्स्ट वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मेकानिकल डिवाइसेस पे जो भली भाव में आम आगे उत्पादन करुले एवं मैनुअली करुले एनिमल शक्तिर व्यवहार करुले एवं से सब आस्ते आस्ते कमिला एवं आम पावर ड्राइवेन वाटर स्टीम पर इलेक्ट्रिक पावर उपरे शक्ति उपरे शक्ति द्वारा परिचालित इंजिन बा मशीन गुड़िकर व्यवहार कले सो मेकानिकल डिवाइसेस बा यांत्रिक उपकरण व्यवहार करने फल आमर उत्पादन रे वृद्धि घटिला और शिल्पायन प्रक्रिया इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ए रिवोल्यूशनरी चेंज नोटिस्ड एवं शिल्पायन प्रक्रिया एक वैप्लविक परिवर्तन फलाफल आनिला देन यो इनोवेशन है इन्वेंशन है बेसिकली एथिरे कोन करा गला ना वेरियस लेबर सेविंग मशीन्स दे यूज द कैपिटलिस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति माने हले पूंजीपति माने हले कि शिल्पपति माने हले एमाने अधिकार लेबर सेविंग मशीन्स बा जिनसे श्रम कम हो जो मशीन से मशीन गुड़िकर बहुल आस्ते आस्ते व्यवहार है मशीन शेयर ऑल्सो डिजाइन इन दैट वे श्रम संचय मशीन एवं ताहा कस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट कला उत्पादन मूल्य यदि आम सम लेबर सेविंग मशीन यूज करचे एवं कस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन मूल्य जदि कम होची ताले हम अधिक प्रॉफिट हम यदि हमर कस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी जो तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कमी जीव तो कस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हम तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़िबो तेणु कैपिटलिस्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी मेन मोटो इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट जो पूंजीवाद रहिला पूंजीपति मान रहिले सेमानकर उद्देश्य अछि अधिक प्रोडक्शन करिवे मार्केटिंग करिवे एवं अधिक लाभ करिवे सो ये कंपटीशन रोच कंपटीशन जी आगु जीव एवं कंपटीशन में एक्सीलेंस क्वालिटी आसो गुड्स इकोनॉमिक ग्रोथ हम तेणु तेणु बर्तमान देखागला जे ये जो दे ट्राई टू मॉडर्नाइज देयर फैक्ट्री ट्राई टू मॉडर्नाइज देयर मशीन्स एवं दे आल्सो यूज्ड वेरियस लेबर सेविंग मशीन्स एवं ये समय गोटे व्यवस्थार उत्पत्ति है ओरिजिन है फैक्ट्री सिस्टम कारखाना व्यवस्था
प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे डोमेस्टिक सिस्टम थिला मर्केंटाइलिज्म पीरियड को आसला पुटिंग आउट सिस्टम एबे आसुची फैक्ट्री सिस्टम सो व्हाट इज डोमेस्टिक सिस्टम रे आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन जो माने द्रव्य प्रोडक्शन करते गुड्स प्रोड्यूस करते से निजर र मटेरियल्स निजर स्मॉल टूल्स मैनुअल लेबर करते जिनस तैयारी करते मार्केट बिक्री करते डोमेस्टिक सिस्टम तेणु आर्टिसंस निजे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते तो तारे पुटिंग आउट सिस्टम रे मर्चेंट्स ट्रेडर्स दे एडवांस लोन टू द आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन लोन देले रॉ मटेरियल्स देले एवं जो फिनिश्ड गुड्स आसला से जे लोन एडवांस देते से बिक्री करेंगे इबे किंतु आसला हमर फैक्ट्री सिस्टम जोटे कि आर्टिसंस हो क्राफ्ट्समैन हो स्किल वर्कर्स हो सब फैक्ट्री कारखाना साइड को आसिया पड़ो सेठी आसी सब काम करे कारण ये फैक्ट्री को आसिया को बाध्य कारण जे स्मॉल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन दे कैन प्लेस द लार्ज मशीन्स इन द स्मॉल प्लेस ये बड़ा बड़ा मशीन जो आसला वो मशीन से आज जो प्रोडक्शन है से बहुत लोक काम कले लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है से बहुत जगह दरकार से निज घर रही काम करते डोमेस्टिक सिस्टम किंतु ये संभव नुह इन ऑर्डर टू प्लेस से रखा पड़ो मेसिनरी बड़ा बड़ा मेसीन जहाँ आसला तेणु फैक्ट्री सिस्टम को आसला ये फैक्ट्री सिस्टम रे लोक मैंने आसी काम कले they became wage earner. Capitalist managed all the things, the means of production owned by the capitalist, and the workers are no say in the process of production. They came and sold their labor, ଆସିବେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ ହେଉଥିଲେ total profit that ଯାହା profit ହେଉଥିଲା ସେଟା डायरेक्टली कैपिटलिस्ट ମାନେ appropriate କରୁଥିଲେ सो ई फैक्ट्री सिस्टम रे गोटे जगार ही लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्री कंग्लोमरेशन ऑफ इन मशीन्स कंग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स रहिला जो विभिन्न बहुत गुड़िए काम एकाथरे करा जाए पारेला कहीं ऑलरेडी एकदम डिस्कशन करते साइंटिफिक इनोवेशन से देखले स्पिनिंग जेनी 1764 हार्ग्रीव्स देन यू सी स्पिनिंग मूल क्रम्पटन देन पावर लूम वाटर लूम कटन जीन ये गुडी को जो सब भावना है ताहा बहुल परिमाण रे हमर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रभावित कला टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्पादन को वृद्धि कराइला जो भले भावे मूल कटन मूल आसला फल सो ये पावरफुल सूता काटा सूता को स्ट्रंग करवा सरू हवा फाइन करवा ये सब कम गुड़िक सहज है उत्पादन बहु परिमाण उत्पादन है जहाँ कम समय रे अधिक प्रोडक्शन कम समय अल्प मूल्य अधिक प्रोडक्शन हो पारा ये सब पर सब मोस्ट इम्पोर्टाट रोलटा रोचे जे शिल्पायन सरकार भूमिका सरकार जो सरकार जिते प्रोएक्टिव जे प्रोत्साहन देवे एंटरप्रेन्योर को जे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेबे जे जो देश जिते निजर रिसोर्सेस को नेचुरल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे से देश से विकसित हो तेणु सरकार भूमिका शिल्पायन बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं सरकार ही पॉलिसी माध्यम रे फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करि पारे द गवर्नमेंट कैन क्रिएट ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजी विनियोग डेवलपमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे रास्ता घाट उन्नति करेंगे रेलवे कंस्ट्रक्शन हम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री साइट्स एंड आल्सो टू सेल फिनिश्ड गुड्स सो सरकार मध्य जाई फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग सिस्टम रो वृद्धि हम कराइबारे सरकार को सहयोग दरकार और लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ बड़ मशीन जो आसला जो कॉस्ट इफेक्टिव है जो इंडस्ट्री जो मशीन गुड़िक स्थापन करने बहुत कैपिटल दरकार
साधारण जो देश गुड़िक बैकवर्ड रहा जो देश कैपिटल जेनेरेशन हो पारू नाही सेठारे सरकार आगे आसा दरकार सरकार ही ये कैपिटलिस्ट हे सरकार कैपिटलिस्ट कैपिटल को इन्वेस्ट कले ही प्रोडक्शन हम तो सरकार भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं इंग्लैंड रे जोटा देखा देले सरकार गवर्नमेंट प्लेड वेरी इंपोर्टेंट रोल कहीं इन्वेस्टमेंट उद्योग निवेश एवं वाणिज्य पाई सामग्रिक परिवेश सृष्टि करिवारे सरकार भूमिका मध्य गुरुत्वपूर्ण थिला। ब्रिटिश सरकार सबु स्तर रे उद्योगिता को समर्थन करथिला एवं ट्रेड बैरियर्स बा जो रेस्ट्रिक्शन थिला कटकणा थिला से सब कटकणा को माने हटाइले कटकणा रे गोटे हूँ मर्केंटाइलिज्म पीरियड वाणिज्यवाद पीरियड ये सब बैरियर्स ट्रेड बैरियर्स रेस्ट्रिक्शंस ये सब को हटाइले प्रतिबंधक दूर करथिले एवं इनक्लोजर मूवमेंट पाई लॉ आनथिले इन जो सब जमी आबद्ध पाई संसदीय सहायता मध्य प्रदान करथिले एवं कठोर आईनी प्रणयन फल रे जो सब असंतोष देखा जातला साको मध्य रोकिबारे साहाय्य करथिले सरकार ये सब व्यतीत मध्य साइंस एंड टेक्नोलोजी डेवलपमेंट पाई मध्य पदक्षेप नेउथिले। तेणु ब्रिटिश 19 शताब्दी मध्य भाग में ब्रिटिश अर्थनीति यूरोप रे सर्वाधिक व्यावसायिक शहरीकरण मोनेटाइज्ड एवं शिल्पायन होता। तो 19 शताब्दी मध्य भाग में इंग्लैंड रे ये सब जिनस होता। सो ये जो फैक्टर रहा ये सब फैक्टर छाड़देला we see there are also other factors that helped growth of industrialization in England जो गुड़िक हूँ कि availability of minerals coal iron ये सबुर सुविधा available थिला सीटा मध्य another factor रोची कना ये जो गुड़ा फर्स्ट दे वेंट फॉर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज बट 1850 पर को आसुची सब हमर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज उत्पादन क्षेत्र रे उत्पादन को बढ़ाया पे जे सब शिल्प दरकार रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन से हमर दरकार को आयरन दरकार देन रेल चलिया पे कम दरकार कोयला दरकार को गुरु मध्य स्मेल्टिंग हैला आयरन ओर को ट्रांसफर करने आयरन ओर पाइबा आयरन ओर आयरन हवा लोहा पत्थर लोहा तैयार करे से स्मेल्टिंग दरकार कोक यूज करले। सो खनिज पदार्थ जो मिनरल्स दैट आर आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड दैट आर आल्सो अवेलेबल इन ब्रिटेन। सो ये जो हमर देखा गला जे परिवर्तन होउची इंग्लैंड रे ये सब कारण जो इंग्लैंड प्रथम शिल्प विप्लव आरंभ होता जहाँकि परवर्ती समय मध्य अन्य जगह को अन्य देश गुड़िक व्यापी था। बृहत अंचल द्वारा घेरी रही एनक्लेव इंडस्ट्रियल एनक्लेव केम इनटू एक्जिस्टेंस। इंडस्ट्रियल एनक्लेव होची ए पर्सन ऑफ टेरिटरी एनक्लेव ए पर्सन ऑफ टेरिटरी सराउंडेड बाय larger territory whose inhabitants are culturally or ethnically distinct। बृहत अंचल जो गुड़िक रहा से गुड़िक घेरी रही अंचल गुड़िक एवं आम देखा जे कि भाव में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वृद्धि घटला एवं फ्रांस रे किभली भाव इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आरंभ है व्हाट आर द फैक्टर्स that are helped in the growth of industrialization in France। फ्रांस रे जो शिल्प विप्लव होता बा स्लीपर बा स्लीपायन होता ताहा अन्य देश तुलन में इवन इफ जर्मनी आग होता फ्रांस रे रशिया सब लास्ट होता स्लीपायन होता किंतु हम तार ग्रोथ रेट देखिए ग्रोथ जो शिल्पायन वृद्धि देखिले फ्रांस रे शिल्पायन वृद्धि अति स्लो एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जोटा आम बर्तमान जोटा आम आलोचना करने जाऊे ताकि
industrialization in some other European countries. England ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବା ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ସୋ ତେଣୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟ ସହିତ ସେତେବେଳେ ସମାନ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜନସଂଖ୍ୟା 3 ଗୁଣ ଅଧିକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ଲୋ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ, ସେଥିପାଇଁ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ଏ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କୃଷି ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍ରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗତିରେ ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେଭଳି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଶିଥିଳତା ଆଣିଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। କାହିଁକିନା କୃଷକମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱି shall discuss what are the factors responsible for the slow growth of industrialization in France. ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଦେଖିବା peasantry that became more deeply entrenched in the wake of French Revolution. ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା ତାହା ଇଂଲଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନଥିଲା, ନଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍। ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ବା ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ବା ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏ ଆର୍ ଅଲସୋ ନଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍। ଥାର୍ଡଲି ଡିପ୍ରିଭେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ମାର୍କେଟ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ତାର ଓଭରସିଜ୍ କଲୋନିଜ୍ ଲସ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁଠି ମାନେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ ରୁହନ୍ତି, ମୋନୋପୋଲି ମାନେ ୱାନ୍ ଟ୍ରେଡର। ତ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ମାର୍କେଟ ମିନ୍ସ ଓନ୍ଲି ଫ୍ୟୁ ଟ୍ରେଡର୍ସ। ତେଣୁ ସେଠି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ହିଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେନି। ସୋ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ରେ କଲୋନିଆଲ ମାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସେଟାକୁ ଇନସିଓର କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ କଲୋନି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ କଲୋନି ଗୁଡ଼ିକର କଲୋନି ବା ଉପନିବେଶବାଦ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶକୁ ଯେତେ ପରାଧୀନ କରୁଛି, ପଲିଟିକାଲି କ୍ୟାପଚର କରୁଛି ଏବଂ ତାର ଇକୋନୋମିକ ରିସୋର୍ସେସଟା ନିଜର ବା ସମ୍ବଳକୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଲୋନି ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର। ସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଏ ସପ୍ଲାୟର ଅଫ୍ ର ମେଟେରିଆଲ ଇନ୍ ଏ ମାର୍କେଟ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଡ୍ସ। ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଫଳରେ in order to feed their industry they required raw materials. ସେ raw materials କୋଉଠୁ ନେଉଥିଲେ? ଭାରତରୁ ନେଉଥିଲେ, ର କଟନ୍ ନେଉଥିଲେ, and that they used or the process in their industries। ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ବା ଶସ୍ତା ଗୁଡ୍ସ, ମେସିନ୍ ମେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ, ଚିପ୍ ଗୁଡ୍ସ ଶସ୍ତା କାହିଁକି ହେଲା ନା କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ ଲୋ। ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ହେଲା କମ୍, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଡିଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ଓଭରସିଜ୍ କଲୋନି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ହରାଇଲା। ତ କଲୋନି ହରାଇଲା ଫଳରେ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଗଲା। ତ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହେଲେ, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ହରାଇଲେ। ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟ ହରାଇଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଗୁଡ୍ସ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲେ। ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସ୍କାରସିଟି, ଅଭାବ। ସ୍କାରସିଟି ଅଫ୍ କୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍। ଯେମିତି ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆବୁଣ୍ଡେନ୍ସ ଏବେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଲୁହା ପଥର ବା କୋଲ୍ ଏସବୁ ଆଇରନ୍ କୋଲ୍ ଏସବୁ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଥିଲା। ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍କାରସିଟି ଅଫ୍ କୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପର ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଦରକାର। So scarcity of coal and iron deposits another factor for the slow growth of industrialization in France. Then cheap labor and a restricted market. This is also another factor, restricted market. Then lower demographic growth, population
एरिया अधिका पॉपुलेशन अधिका किंतु ग्रोथ रेट कम थिला जनसंख्यार वृद्धिर रेट कम थिला सो आउ केते गुटे मध्य फैक्टर्स थिला जहा पर कि सेठी स्लो ग्रोथ रेट हेतला इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो हेतला द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो आल्सो ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स इन फ्रांस देयर इज हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट गमनागमन व्यवस्थार अधिका खर्च होता हाई कॉस्ट limited internal market then another factor is the elite which retain interest in land as well as bureaucratic position जो माने elite थिले से माने जमी रे अधिक इंटरेस्ट देखैले कैपिटल इन्वेस्टमेंट कले तो जमी प्रति इंटरेस्ट जमी रे इन्वेस्ट करिया जमी रे इन्वेस्ट करिया मींस एग्रीकल्चरल कैपिटलिज्म इंडस्ट्री इन्वेस्ट करवा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म तो जमी जेहेतु से इंटरेस्ट देख अधिक रुचि रहा जमी जमी से इन्वेस्ट कले आ गोटे जिन हो एलिट्स दे आर इंटरेस्ट फॉर ब्यूरोक्रेटिक पोजिशन तो एंटरप्रेन्योर्स दरकार इंडस्ट्री ग्रोथ करने उद्योगी दरकार एंटरप्रेन्योरशिप टाक सरकार प्रोत्साहन देवा दरकार ओडिशा जमी आम देखुचे जे आमर खनिज पदार्थ बहुत अच्छी रॉ मेटेरियल्स भी अच्छी किंतु स्वाधीनता पर आमर जो इंडस्ट्री हो पारानी बेस किसी ग्रोथ हो पारानी जी ओडिशा आमर रॉ मेटेरियल्स रही खनिज पदार्थ रही चीप लेबर था बहुत सब सुविधा था किंतु दुईटा जिन नाला सरकार विल पावर नाला आउ गोटे गोटे एंटरप्रेन्योर क्लास एंटरप्रेन्योर क्लास उद्योग नथिले कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो पार नाला तेणु फ्रांस रे एभली भाव में इंडस्ट्रियलाइजेशन आरंभ होता किंतु से ग्रोथ है ना पर आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देन steps are taken a number of steps are taken some from abolished or some a lot of changes structural changes that took place which helped for the growth of industries again also we see that during the period of Louis Napoleon when he became the president of France seta madhya industrialization ro शिल्पायन बहुत उन्नति लाभ करथिले कारण जो देश जते गोटे देशर तार सम्मान तार पोजीशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ही डिपेंड करथिला केते से माने इंडस्ट्रियली एडवांस जो देश से समय इंडस्ट्रियली बैकवर्ड थिले जो मानकर कॉलोनी कम थिला से देश गुड़िकर अंतर्जातिक स्तर रे से सम्मान से कम थिला तो राजा मैंने चेष्टा करथिले कि हाउ टू एक्वायर मोर एंड मोर कॉलोनीज टू सेल देयर इंडस्ट्रियल गुड्स अधिक शिल्पायन द्वारा इनकम बढ़ेबे जहाँ फल कि शासन कर से कष्ट हम असुविधा हम ना नेशनल इनकम ग्रोथ हेले राष्ट्र आर्थिक अभिवृद्धि हेले तो सेटा गोटे सुविधा होता नेपोलियन जो प्लेबिसाइट माध्यम आसिले सिंहासन आसिले पर प्रेसिडेंट हेले से चेष्टा कले से समय ये सब जिन साहाଯ୍य करते कौन मैंने बिजनेसमैन ट्रेडर्स मिडिल क्लास बुर्जुआ परवर्ती समय डेवलपमेंट है किंतु आफ्टर द डिफीट ऑफ फ्रांस इन द हैंड्स ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन समय जो है 1871 मसीह she has to pay indemnity to Germany to some extent its industrial growth was affected and परवर्ती समय परिवर्तन घटुची अप टू जो परिवर्तन घटुची फ्रांस रे जनसंख्या परिवर्तन घटुची प्रोडक्शन परिवर्तन घटुची से डाटा रोचे जे को मसीह पर्यंत से केवल सिंस 1840
France was decisively moving to capital intensive production. 1840 रे हमर विप्लव आसला 1848 रे फेब्रुआरी रिवोल्यूशन हेतला तो ई जो पीरियड रहला 1840 रे फ्रांस रे गोटे ट्रांजिशनल मूव होची जे they are moving towards capital intensive production in cotton industry. Capital intensive production means not that means the growth of machineries. प्रोडक्शन उत्पादन प्रक्रिया को त्वरान्वित करने जो मेसीन सब आसला कैपिटल इंटेंसिव से पुंजीर आवश्यकता पड़ा कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ये बुझा पड़े कैपिटल इंटेंसिव मीन्स जो इंडस्ट्री गुड़िक अधिकारु अधिका पुंजी विनियोग आवश्यक पड़ता तेणु 1840 पर decisively so moving towards a capital development ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ସେଇ ସମୟ ଦେଖାଯାଇଛି ତାର ସେ Alsace and Lorraine in 1870 Alsace attained a comparable level of mechanization and sophistication to Lancashire in Britain. Coal production also increased massively, 5 million metric ton in 1853 and 13 million metric ton in 1869. Another area in which development occurred to initially a limited extent was iron industry. प्रारंभिक स्तर रे सीमित थिला coke smelting and puddling and rolling technology was introduced on an increasing scale. So however जदि आमे कंपेयर करिवा इंग्लैंड जर्मनी को फ्रांस सहित we see the pace of French industrialization was slow. Moreover, even in 1870, France did not quite fulfill the crucial indication of completed industrial revolution. That are requirements. Moreover, 50% of male laborers, जितने industrial workers थे, 50% of its male labor force remained in primary sector, while industry absorbed only 29%. इथुर जना पड़ुची तार शिल्पायन स्थिति ये भला थला. Urbanization was only 31% and income from industry amounted only 36%, which was equal to primary sector 34%. Primary sector जो आस्तला तार contribution होतला 34%, whereas industry was 36% by 1870. So in continental European countries, France did not offer. अन्य देश तुलना देखले मध्ये सेते मध्ये खराब नथिला. एबे हम देखले जे हाउ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बा इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्पायन किभଳି भाबे जर्मनी रे हैला एवं जर्मनी और फ्रांस इंग्लैंड कथा देखले जर्मनी रे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री प्रथमे अपेक्षा कंज्यूमर गुड्स अपेक्षा से माने कैपिटल गुड्स पर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री आसला कंज्यूमर इंडस्ट्री से डेवलप है नथिला. कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री नथिला कैपिटल इंटेंसिव इन कंट्रास्ट टू फ्रांस एंड इंग्लैंड व्हिच आर कॉम्पैक्ट. फर्स्ट देखिए तार पॉलिटिकल कंडीशन कोन सरकार मध्ये plays important role in growth of industries. And in contrast, संपूर्ण विपरीत थिला सेठे राजनीतिक अवस्था जर्मनी रे कारण जर्मन स्टेट्स एंड जर्मन एम्पायर. German empire happened after unification 1871 and before that the German states. The German states there is no political unity. Different trade barriers थिला, trade restriction थिला, rule regulation मध्ये अलग थिला. Capital investment generate ही पर नथिला, industrial capital generate ही पर नथिला. तेणु in contrast to France and England, which are compact political units, Germany was divided into several development states until the unification of Germany 1871. The economic integration of Rhineland with France increased. Kaina Germany
जो जर्मन स्टेट समय जो राइनलैंड सेटलमेंट है 1806 1807 नेपोलियनिक रूल बिकज ऑफ नेपोलियन फ्रांस शासन भीतर आसला फ्रेंच सैटेलाइट जो एस्टाब्लिश करागला फ्रांस लेजिस्लेशन आईन कानून नेपोलियनिक कोड ये सब परिवर्तन घटला जर्मन स्टेट्स तो जर्मन स्टेट्स यहीटा ही प्रथम ही प्राइमरी स्टेज रे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रक्रिया को ही अफेक्ट कला तो जर्मनी स्टेट जर्मन स्टेट्स थिला एवं आउ गोटे घटना ये समय जो घटी से जो कहे कॉन्टिनेंटल सिस्टम रे जोटा कि नेपोलियन इंग्लैंड विरुद्ध लगाई तेणु कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो ब्रिटिश गुड्स एंड अदर गुड्स नॉट अवेलेबल इन दैट in German states, so that's they emphasize on their own goods and निज कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन रहा पोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन लगे इंग्लैंड लगे तो जहाँफल कि गुड्स फ्री मूवमेंट हो पारा ना बर्तमान से निज जिनस निजे निर्भर करा पड़ा से प्रोडक्शन कले जोटा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सुविधा है आ गोटे कथा हूँ जो फ्रांस अंडर आसला जर्मन स्टेट्स गोटे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द राइनलैंड with France increase prosperity especially in industrial production while business accelerated with the new effectively and lowered trade barriers व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में जो सब कटकणा था that also removed एवं देयर सर्टेन जो नियम गुड़िक आसला से समय विधानसभा अनुसार जो नियम गुड़ी आसला आ गोटे डेवलपमेंट ये समय होता दैट इज कॉल्ड इमानसिपेशन एडिक्ट जोटा कि हेल्पफुल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्पायन यहाँ बहुत आवश्यकता अच्छी द इमानसिपेशन एडिक्ट इमानसिपेशन एडिक्ट कौन 1807 रु 8 इमानसिपेशन एडिक्ट में सॉफ्ट पैंट फ्री कर दिया गला ये सॉफ्ट पैंट फ्री कर दिया गला से माने मुक्त होइले मुक्त हेबा पर से शहर को जाय पे जोठी तक जमी किनि परिबे ये सब परिवर्तन आसर नियम कानून थिला प्रोसीजर थिला समस्त संपूर्ण भाव में मुक्त कर जाए नथिला एवं सेटा गोटे पदक्षेप जोटा कि हेल्प होला एवं आउ गोटे डेवलपमेंट है जर्मनी जोटा कि शिल्पायन को वृद्धि करला दैट इज कॉल्ड कस्टम यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रुसिया प्रुसिया था सब जर्मनी शक्तिशाली राष्ट्र ता अंडर ता अधीन अंडर ये जो कस्टम यूनियन करागला तो कहला जोल्वेरिन तो कस्टम यूनियन करागला माने जो देश गुड़िक जो राज्य जर्मन स्टेट्स गुड़ा यहाँ अंडर रहे से भितर ट्रेड एंड कमर्स वृद्धि घटला विदाउट एनी बैरियर आगर जो सब बैरियर थिला से बैरियर हटे देले तेणु जो बैरियर हटिगला जो कष्टकणा हटिगला सो दैट लेड टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन राजनीतिक एकताकरण हो इंटीग्रेशन आसुची पॉलिटिकल इंटीग्रेशन सहित इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इनकम बढ़ला आ द्वितीय फास्ट कही प्रथम कहते जर्मन क्षेत्र में तो ये कंज्यूमर बेस्ड गुड्स इंडस्ट्री आसी ना जो कैपिटल बेस्ड गुड्स इंडस्ट्री सब आसला तो बेसिकली से कौन कले एम्फासिस देले फॉर द ग्रोथ ऑफ रेलवे रोड से बहुत इन्वेस्टमेंट है दे आल्सो इनवाइटेड फॉरेन कैपिटल एंड आल्सो दे टुक द हेल्प ऑफ इंग्लैंड एंड अदर्स फॉर देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन इवन 1870 पूर्व जर्मनी यूनिफिकेशन पूर्व इंडस्ट्रियल भित्तिभूमि हो सारी परवर्ती समय 1871 पर 1871 1914 पर दैट लेड टू मास प्रोडक्शन अधिका त्वरान्वित है गोटे समय जदिव पछरे जर्मनी रे शिल्प विप्लव आरंभ होता शिल्पायन होता ग्रोथ रेट इंग्लैंड को क्रॉस कर जोल्वेरिन गोटे पदक्षेप एवं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे आसला ये बहुत साहय कला जॉइंट स्टॉक कंपनीज हेल्पफुल जॉइंट स्टॉक कंपनी होची जे प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन होची
जॉइंट स्टॉक बैंक बैंक हूँ ए सेपरेट थिंग गवर्नमेंट बैंक सेटा अलग विधानसभा नियम अनुसार व्यक्तिगत पुंजी ग्रहिता हेउची हेउची जॉइंट स्टॉक बैंक एवं एटा सरकारी बैंक सरकारी बैंक अलग थिला private capital is subscribed by private persons in a joint stock capital is subscribed by private persons under state law it is different from government bank so all these things led to cooperation and सरकार परवर्ती समय सरकार काम है क्रेडिट जोगे देवा क्रेडिट सिस्टम उन्नति आनिबा कोऑपरेशन डेवलपमेंट सेंट्रल बैंक ये जो गुड़ा रहिला एगुड़ा दैट कम्स अंडर जॉइंट बैंक सॉरी जॉइंट स्टॉक बैंक पहले गुड़ा ना हमर क्रेडिट सोसाइटी सेंट्रल बैंक डेवलपमेंट बैंक सो दीज आर द थिंग्स एवं हमर आलोच्य विषय चले कि भली भाबे यह स्प्रेड करूची डिफरेंट पार्ट्स को एवं वर्तमान आम देखा रशिया किभली इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म रशिया किभली भाव रशिया रे लेट रे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता इन 1861 सर्व टर्म वाज अबोलिश्ड जदि वेस्टर्न यूरोप रे प्रथमे वेस्टर्न यूरोप रे फर्स्ट इंडस्ट्रियल आरंभ होता मॉडर्नाइजेशन आसला साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कला किंतु से समय मध्य फ्रांस रे agriculture was the predominant occupation of the people landlords and all the things that have continued and in 1861 serfdom was abolished serfdom माने कृषि वृत्ति abolished हला एवं रशिया रे लेटली ए सब जिंस आरंभ होइतला तांकर सेठी मध्य जेतु रशिया गोटे इंडस्ट्रियल बैकवर्ड थिला जमती हम वीट सिस्टम कथा देखा सर्गी वीट प्राइम मिनिस्टर थे ही टुक अ लॉट ऑफ स्टेप्स फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन रशिया फॉर एग्जांपल द बैंकिंग सिस्टम ही इंट्रोड्यूस स्टेट बैंक्स देन पुट रबल तंकर जो कॉइन्स थिला दैट पुट ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड को परिवर्तन करियार कारण होची जे अधिका इन्वेस्टमेंट हेबो रशिया लर्नड a lot from the industrial countries जेतु रशिया रे लेट रे इंडस्ट्रियलाइजेशन हला तनु जो इंडस्ट्रियलाइज द संगठ हारू बहुत शिक्षा पड़े एंड आल्सो अट्रैक्टेड ट्राई टू अट्रैक्ट द फॉरेनर्स टू विदेशी पूंजी विनियोग होबेंगे गोटे सुविधा सृष्टि हला एवं कहीं ना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमर पूंजीर आवश्यकता अछि बैकवर्ड कंट्री थरा रशिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सेवन स्टाकल तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करिया पेंगे सेमान कोन करे ना जे गोल्ड स्टैंडर्ड रबल पुट रबल ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड करिया द्वारा होची तांकर जो करेंसी रो स्टेबिलिटी आसीला तो एक्सचेंज रे सुविधा हबो नै बा फॉरेन कैपिटलिस्ट माने इंटरेस्टेड हेबे टू इन्वेस्ट मनी इन रशिया विशेष दैट आल्सो रशिया रे मध्य आ जो परिवर्तन गुडी हला से गुडी तांकर बजट सिस्टम बजट रे मध्य स्टेबिलिटी आसला परिवर्तन आसला द्वितीय रे पेमेंट बैलेंस पेमेंट माने लोन रिपेमेंट करियार मध्य परिवर्तन आसुची द्वितीय रे बैंकिंग सिस्टम आसला ए समय मध्य हम जेस्ट्रन कर थ्योरी बा मॉडल जोटा कि पर्टिकुलरली रशिया पे एप्लीकेबल सेथरे मध्य दर्शा जाय जे यदि गोटे लेट राइज करथिबा इंडस्ट्रियल कंट्री एवं आगरू राइज करथिबा इंडस्ट्रियल कंट्री समान का माने डेफिनेटली जे लेट रे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो देश रे होची डेफिनेटली समान जे सेही प्रोसेस बा सेही फॉलो बा सेही मेथड फॉलो करथि सेमि किछि मान पर कोनसी माने प्रक्रिया फॉलो करथि देखा जाय नै काना रशिया रे मध्य जहा आसिले समान मध्य लेबर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री दे प्रोड्यूस तार मूल कारण होची ना कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री नथिला बा कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री से माने सेते इंटरेस्टेड नथिले काहे से कंज्यूमर नहीं बैकवर्ड कंट्री नो रिलेशन ऑफ कंज्यूमर्स सो एबे लेट अस सम अप व्हाट वी
discuss today. Now today, today we have discussed the growth of industrial capitalism in Europe between 1851 to 1914. In the process of industrialization, a major role was played by the state, which tried to mobilize the labor force, create uniform legislative measures, enhance industry, and create market. ये सब सृष्टि करेले परिवेश सृष्टि करेले for industrial products. शिल्प उत्पादन ପାଇଁ Russia, latecomer in industrialization, benefited from the experience of other European countries in Russia. Because of a limited market for consumer goods, the main focus was on the growth of